आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद में वर्ल्ड क्लास डिफेंस यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। हिंदुस्तान और अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद दिफाई हब बन चुका है। 12 से ज़्यादा दिफाई, 25 एरोस्पेस और बोइंग कंपनी का दफ्तर पहले ही हैदराबाद में कायम हो चुका है। उन्होंने कहा कि IPAS की इजराई से सनतकारों और सरमायाकारों को हैदराबाद में सनतें कायम करने के लिए काफ़ी सहूलत मिली है। उन्होंने कहा कि IPAS के नतीजे में हुकूमत कंपनियों को अपने दफातर कायम करने के लिए 15 दिन के अंदर इजाज़तनामे जारी कर रही है। Strategic trade and bilateral engagements. Thank you, Joel, and your entire team, in fact, for making several of such events happen right here in Hyderabad, ranging from the Global Entrepreneurship Summit to many, many events such as the US-India Defense Ties that is being held today. I'm also glad, Joel Starr, that the US administration has chosen to engage directly at the state level, not only at Delhi's level. Washington and Delhi, of course, continue to remain engaged, continue to remain extremely friendly. At the President and Prime Minister's level, at the level of ministers, at the level of the Secretary of State. But I'm also delighted that you've chosen to engage with several states across our country. This I believe is extremely important in strengthening not just a larger policy level engagement at the capital level, but also defense manufacturing capacity building, which are already existing in several locations, both in India and also in the United States. India is a federal country, a federal republic, as we all know, and has a lot of progressive states which offer the best ecosystem for industrial partnerships, and Telangana, of course, I would like to believe, leads from the front. As many of you may be aware, Telangana is the fastest growing state in India, almost with a 14% GSDP growth rate as of 2018 and 19. This year, we may have slowed down a bit, but I think good times are right around the corner. Telangana is also the top state in India when it comes to the ease of doing business rankings given jointly by the World Bank and the Government of India. We've topped the charts 2 years in a row. As Consul General Reifman pointed out, our unique industrial policy, called as the TS-IPAS, is rated among one of the best in the country. In fact, I have to share with you a story with respect to TS-IPAS. We've launched it 5 years back, and as part of my job, I travel the world. I also traveled to the United States a couple of times. And when I met with one of the chairmen of the largest consulting companies in the world, KPMG, this was about 3 years ago. And when I explained to him the salient features of the TS-IPAS, and when I told him a defense company coming in from the United States into India, and specifically to Telangana, will not require any clearance from the government. If they have a piece of land, they can start construction on day one, start constructing their factory on day one. And when I told him that this process is called self-certification, he was amused. And then when I told him we give all clearances in less than 15 days, and this is empowered by statute, he was impressed. And then I also added that the legendary Indian red tape bureaucracy has bitten the dust in Telangana, and in fact, if we do not deliver on the 15-day promise, on the 16th day we have the ability to actually levy penalties and fines to the tune of rupees 1,000 per day if you hold up a clearance. He was amazed. When I told him that this possibly is one of the best policies in the country, that is India, he said, well, this possibly is one of the best in the world because no state in the United States also told me this. So let me tell you, 5 years later, after TS-IPAS has been passed in our state legislature, we've not only come out with a good policy that talks, we also have come out with a good policy that works. As was pointed out by Consul General Reifman, the largest office spaces of Amazon in the world, a 3.1 million square foot building, was approved in less than 11 days. And as was also pointed out by Consul General Reifman, Micron Technologies, when they were looking for a strategic location to set up their research and development and engineering center of excellence, it was all done, from scratch to finish
in less than a year. So that goes to show you the ability of a state to step up, to bring in reforms, to work with the industry, to engage with investors globally, to understand their needs, and lower and reduce the barriers when it comes to entering a state or a country. We believe aerospace and defense has got more potential. As was pointed out by Joel Starr, it is 16 billion now, but I do believe that this is just the beginning. There's a lot to be done. As part of that, let me also bring you up to speed on the strengths of Hyderabad and Telangana as a state. Hyderabad has historically been a very strong defense manufacturing ecosystem, with more than a dozen DRDO labs, which is what India's national defense labs, and a lot of defense PSU establishments set up here decades ago. We also have, as a result of these labs, a strong private sector industry with more than 25 large companies and more than 1,000 MSMEs in aerospace and defense sector. Aerospace and defense ecosystem in Telangana has witnessed unprecedented growth in the past 5 years. The role of US OEMs in developing the aerospace and defense industry in Hyderabad is extremely significant. In a short span of time, the state ecosystem has attracted large investments from United States OEMs such as Lockheed Martin, Boeing, GE, Pratt & Whitney, Honeywell, Collins Aerospace, etc. For example, Lockheed Martin first started manufacturing the C-130 from their entire factory, I'm told, was built in 11 months and production started in about 13 months. They found the ease of establishing their factory in Hyderabad much smoother and faster than any of their other production sites across the world. Today, the fuselage of US presidential helicopters, Sikorsky, are made in Hyderabad. Lockheed had recently started the production of F-16 wings from Hyderabad, subject to correction, of course. I see William looking at me. Tata Lockheed Martin is looking at doubling its capacity and expanding further in Hyderabad. The fact that Lockheed chose to bring such prestigious projects one after another in close succession indicate the confidence they have in the ecosystem in India and more particularly in Hyderabad and in Telangana. Another aspect to highlight is that the entire manufacturing is export oriented. So it's not just make in India for India's needs, but this is making in India for the world, which is where I think this ecosystem and this industry has a lot to offer. It is not just the current manufacturing in Hyderabad is not just linked to any offset or supply to Indian forces. This shows that Hyderabad has evolved as a preferred low-cost manufacturing ecosystem for global production. The real Make in India and defense programs successfully demonstrated by Lockheed has attracted several other US OEMs, such as Boeing, to establish their factories in Hyderabad. Aerostructures for Apache, Boeing Apache, attack helicopters and Chinook helicopters are built and exported from Hyderabad. An education for me that I will take back to the Department of State and specifically my bureau, the Political Military Bureau, where Assistant Secretary Cooper is the new Assistant Secretary as well. And so with that, I'll just say that this has been a excellent beginning for me in the PM Bureau, and we look forward to having a really good relationship as we move towards the 2+2 dialogue, as well as foreign military sales, direct commercial sales. And by the way, did I mention that the F-18 Super Hornet? We can't hear you. Can you hear me now? Yes, sir. All right. Well, I'll abbreviate this again. I'm Deputy Assistant Secretary Joel Starr. It's my first visit to Hyderabad. I've had a warm welcome. I am looking forward to continuing having great discussions with mil-to-mil relations and taking back a lot of information to Assistant Secretary Clark Cooper, who is my immediate superior, and also to Secretary Pompeo. And I'm very encouraged by the 2+2 dialogue that will be occurring very shortly. And with that, I will turn it over to the Consul General for any comments. रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि रियासतों को माली वसाइल और खुद अख्तियारी के जरिए मरकज़ अपनी जिम्मेदारी
पूरी कर सकता है, क्योंकि ये दोनों रियासतों की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। हरीश राव ने बताया कि उन्होंने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को बताया कि जीएसटी और दूसरी वजूहात की वजह से सनतकार सरमाकारी से पसुपेश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि देसी सनतकारों के साथ साथ बैरूनी सरमाकारों में भी एतमाद पैदा करने की जरूरत है। जीएसएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा है कि गच्चीबौली के बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर के डिजाइन में कोई खराबी नहीं है और हुकूमत से इजाजत हासिल करते हुए अंदरून 10 दिन उसे दोबारा आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह इस फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कारी के उलट जाने के नतीजे में खातून हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए थे। कमिश्नर ने बताया कि कार का ड्राइवर कलवा कुंतला मिलन कृष्णा राव की गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटे से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने बताया कि अब तक इस फ्लाईओवर पर ओवर स्पीडिंग करने वाले 540 गाड़ियों को चालान किया जा चुका है। हैदराबाद सिटी पुलिस को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए बेहतर पुलिसिंग करने वाली मुल्क की पहली पुलिस फोर्स बनने का एजाज मिला है। अब किसी को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन को जाने की जरूरत नहीं है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि 60 से 70% केसेस अब पेट्रोल टीम ही दर्ज करेगी। बादशाह इन केसेस को पुलिस कार्रवाई के लिए मुताल्लिका पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि दोनों शहरों के लिए 122 पेट्रोल कार है जो किसी भी इत्तला पर मिनटों में फौरी मकाम वाक़ा पर पहुंच जाएंगी। हर पेट्रोल कार रोजाना 60 किलोमीटर का अहाता करती है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह का नाम हनुस पुलिस मंगल हाट के रॉडीशीट फेरिस्त में मौजूदगी पर तनाज़ा पैदा हो गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने आज अपने तमाम जोन के रॉडी शीटरों को काउंसलिंग के लिए तलब किया था। ताहम रॉडी शीट में नाम पाए जाने के बावजूद राजा सिंह गैर हाजिर रहे। बताया जाता है कि राजा सिंह के खिलाफ 2006 में रॉडी शीट खोली गई थी, जबकि वो तेलुगु देशम के कारपोरेटर के साथ साथ हिंदू वाहिनी तंजीम से वाबिस्ता थे। राजा सिंह ने सोशल मीडिया पर रॉडी शीटों की लिस्ट जारी होने के बाद अपना रद्दमत जाहिर करते हुए कहा कि असम्बली के लिए मुंतखब होने के बाद उस वक्त कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने कहा था कि उनका नाम हटा दिया जाएगा। ఇవాళ మన కొంతమంది కార్యకర్తలు ఉన్నారు, డీసీపీ గారు ప్రతి ఒక్క రౌడీ షీటర్స్కి పిలిచినారని మా కార్యకర్తలు పోయినారు. కార్యకర్తలు పోయిన తర్వాత అక్కడ ఒక లిస్ట్ ఉండే, మంగళాట్ పోలీస్ స్టేషన్ లిస్ట్. దాంట్లో ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ అంటే నా పేరు కూడా ఆ రౌడీ షీటర్ లిస్ట్లో ఇంక్లూడ్ ఉంది. ఆ మా కార్యకర్త అది ఫోటో దించి నాకు పంపించిండు. నేను ఆలోచన చేసిన, అరే ఇప్పుడు కూడా నేను రౌడీ షీటరానా, కొద్ది బాధపడా. ఎందుకంటే మనం అన్నీ ఇడిచి పబ్లిక్ సేవ గురించి ఇవాళ పబ్లిక్ గురించి కొట్లాడినాం. ఇవాళ ఒక సెకండ్ టైం కూడా మనం ఎమ్మెల్యే అయినాం. ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మొత్తం ప్రజలకి తెలుసు మనం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నాం, ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ పరంగా మనం పనిచేస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడు కూడా తెలంగాణ పోలీస్ దృష్టిలో నేను ఒక ఎమ్మెల్యే కాదు, నేను ఒక రౌడీ షీటర్. తెలంగాణ పోలీస్ దృష్టిలో ఈ విధంగా ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్లో కూడా చాలా మంది రౌడీ షీటర్లు ఉండే కదా.
మినిస్టర్లు కూడా ఒకప్పుడు రౌడీ షీటర్లు ఉండే కదా, మళ్ళీ వాళ్ళు పేరు కూడా ఈ విధంగా రౌడీ షీట్ లిస్ట్లో ఉందా నేను అడుగుతున్నా పోలీస్ అధికారులకి. వాళ్ళ పేరు పెట్టే దమ్ముందా నేను పోలీస్ అధికారులకు అడుగుతున్నా. నా పేరు పెట్టినారంటే నాకు బాధ లేదు, కానీ నేను ఆలోచన చేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను ఒక ఎమ్మెల్యేనా లేక ఒక రౌడీ షీటరా? దీనికి సమాధానం మా ముఖ్యమంత్రి గారు, హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఇవ్వాలి. इनकम टैक्स के हुक्काम ने आज सनतकार रघुनाथ मित्तल और उनके अरकानी खानदान के दफातर और रहायशगाहों पर धावे मारे। जिन इलाकों में धावे किए गए उनमें बंजारा हिल, हैदराबाद और आदिलाबाद काबिल जिक्र है। रघुनाथ धागा बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं। ये कंपनी बांग्लादेश, वियतनाम, चीन और इंडोनेशिया को भारी मकदार में धागा एक्सपोर्ट करती है। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मईनुद्दीन ने आज कनका दुर्गा नगर में गरीब ईसाइयों में क्रिसमस के मलबूसात तकसीम किए। यहाँ बताना जरूरी होगा कि रियासत हुकूमत गुज़श्ता 5 साल से ईसाइयों में तोहफे के तौर पर मलबूसात तकसीम करती आ रही है। इस मौके पर कारपोरेटर राजेंद्र यादव, लंगर हाउस के नुमाइंदा कारपोरेटर वजूज़मा सिद्दीकी, जीवन सिंह और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। గెలిచిన తర్వాత 216 లోపల ఒక క్రిస్టియన్ బ్రదర్ నాకు ఫోన్ చేశారు, సారు మేము ఇక్కడ లంగరోజు ఉంటాము, కానీ మా ఒక సోదరుడు చనిపోయారు, అతనికి శంషాన్లో కానీ ఎక్కడైనా లైన్ ఇవ్వడం జరుగుతలేదు. దాని తర్వాత నేను కలెక్టర్ గారితో 5 సార్లు కలిసి మైనారిటీ మినిస్టర్ గారితో కలిసి దానికి మనం సర్వే చేపించాము. మనం ఒక శంషాన్ ఘాట్ గురించి, గ్రే హార్ట్ గురించి ఆ లైన్ లో ఐడెంటిఫై ఇప్పుడు ఇబ్రాహిం బాగ్ పక్కన ఒక లైన్ ఉంది, 1.5 హెక్టర్ అక్కడ ఇస్తామని మా మంత్రి గారు, మన జిల్లా కలెక్టర్, హైదరాబాద్ కలెక్టర్ గారు ఇస్తామని నాకు ఆర్డర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దాని తర్వాత కొంచెము డిస్ప్యూట్ తర్వాత నేను అనుకుంటా ఒక వారం, ఒక నెల లోపల మనకు ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత మీ కార్వాన్కు సంబంధించిన ఈ క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన పెద్దలందరూ కూడా తెచ్చి మీ అందరి పార్టీ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత 1999 తర్వాత ఎంఐఎం పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత కార్వాన్ లోపల ఈ రోజు వరకు మత ఘర్షణ లేకుండా మధ్యలో ఎంఐఎం పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఉండి ప్రతి కులాలకు, ప్రతి మతాలకు మధ్యలో ఉండి డెవలప్మెంట్ పనిచేసే పార్టీ ఎంఐఎం పార్టీ. దానికి మీరు ఈరోజు మీ దగ్గర కానీ నా కార్వాన్కు సంబంధించిన నేను रामागुंडम के कमिश्नर पुलिस वी सत्यानारायण ने खवातीन के खिलाफ मजालिम के वाकयात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस एक नई हिकमत अमली अपना रही है, जिसके तहत खवातीन से मुतालिक केसेस की फौरी यकसुई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस बेल्लमपल्ली पुलिस सब डिवीजन में अवामी शऊर बेदारी के एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में मुकामी एमएलए डी चिन्नैया और मंचियाल के डिप्टी कमिश्नर डी उदय कुमार रेड्डी भी शरीक थे। वी सत्यनारायण ने मजीद कहा कि खवातीन और लड़कियों को हिफाजत खुद इख्तियारी की टेक्निक सीखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मंचिरियाल में 147 ऐसे मकामात की निशानदेही की गई है जहां खवातीन और लड़कियों का जमघट्टा होता है और वहां नौजवान उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड और अहम चौराहों और दूसरे आम मकामात पर सी टीम से वाबस्ता पुलिस मुलाजिमीन मुफ्ती में तैनात रहेंगे। इस प्रोग्राम में 7000 से ज़ायद खवातीन ने शिरकत की। बेल्लमपल्ली के एसीपी रहमान ने खैर मकदम किया। दिल्ली पुलिस की बर्बरियत और कानून तरमीमी शहरियत के खिलाफ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा के एहतजाज में मानू टीचर्स एसोसिएशन और मानू एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन भी शामिल हो गई। इन दोनों तंजीमों ने कल एक रैली भी निकाली। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस और एफ्लो में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह का पुतला नजर आतिश किया। पुलिस ने इम्कानी गड़बड़ के पेश नज़र तमाम जामियात के पास पुलिस का खुसूसी बंदोबस्त किया है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे के 9 ट्रेन स्टेशनों को बाविखार ISO अवार्ड मिला है। इनमें सिकंदराबाद,
हैदराबाद, काचीगुड़ा और निजामाबाद के स्टेशन शामिल हैं। इस अवार्ड के वसूल के बाद रेलवे मुसाफिरीन को यकीन होना चाहिए कि रेलवे माहौलियाती निज़ाम के लिए काफ़ी इकदाम कर रहा है। ISO सर्टिफिकेट उन्हीं इदारों को मिलता है जो साफ सफाई और बरवक्त कचरे की निकासी, पानी और बरक़ी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे जी मल्लैया ने जोन के 9 स्टेशनों को अवार्ड मिलने पर रेलवे मुलाजिमीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया कि कौमी ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में इंडियन रेलवेज को हिदायत दी कि वो 36 ऐसे स्टेशनों का इंतखाब करें जिन्हें इको स्मार्ट स्टेशन में तब्दील किया जा सके। चुनांचे साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और विजयवाड़ा की निशानदेही की है। शाहनाजगंज पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा ट्राली की चोरी के सिलसिले में 20 साल राजेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 2 मसरूखा सेलफोन भी बरामद किए। एडिशनल इंस्पेक्टर के मारुति प्रसाद की निगरानी में क्राइम पार्टी ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। షనాగంజ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ నెల 15వ తారీఖు రోజున ఇంటర్వ్యూనింగ్ నైట్ ఆటో ట్రాలీ దొంగతనం చేయడం జరిగింది. అది మా ఏరియా నుంచి నైట్ 15th రోజు నైట్ ఈ రాజేష్ సన్ ఆఫ్ నందా హఫీజ్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ హఫీజ్ పెట్టిన 20 years ఇతను ఆనియన్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ దగ్గర ఒక హైమద్ అనే వ్యక్తి దగ్గర ఇతను హఫీజ్పేటలో వర్క్ చేస్తుంటాడు. ఆడికెళ్ళి వచ్చేసి ఇతనికి నేర ప్రవృత్తి ఉన్నది. ఇంతకుముందు గతంలో కూడా కొన్ని సెల్ ఫోన్స్ దొంగతనం చేసిండని చెప్పి ఆరోపణలు కూడా ఇతని మీద ఉన్నాయి. ఈరోజు మేము వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా అతను ఈ ట్రాలీ ఆటో నడుపుకొని వచ్చాడు దీని డిస్పోజల్ కోసం అని చెప్పేసి దాన్ని వెహికల్ చెకింగ్లో మేము పట్టుకుంటే దాన్ని డాక్యుమెంట్స్ అడిగినప్పుడు ఇతను సరైన పత్రాలు చూపించలేకపోయాడు. అప్పుడు మేము పోలీసులు తీసుకొచ్చేసి అతను అడిగితే కన్ఫ్యూజ్ చేసిండు. ఇది నేను జుమేరాబాద్ నుంచి దొంగతనం చేశానని చెప్పేసి చెప్పాడు. ఆటో సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇతన్ని ఈరోజు రిమాండ్ తరలిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक 16 साल लड़की की 3 अफराद ने इज्तिमाई अस्मत रेजी की। बताया जाता है कि लड़की अपनी नानी के साथ रहा करती थी। लड़की के वालिद ने शिकायत की कि 3 अफराद उसके घर में दाखिल हुए और लड़की की अस्मत रेजी की। स्टेशन हाउस ऑफिसर मनोज कुमार ने बताया कि मुलजिमीन ने शिकायत करने पर संगीन नतायज व आखिब की धमकी दी। मुलजिमीन की तलाश जारी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज से निमटने के तरीक़ेकार पर शिवसेना ने मरकज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। शिवसेना के तर्जुमान सामना में शायदशुदा इदारे में कहा गया है कि शहरियत तरमीमी बिल पर पूरे मुल्क में गम व गुस्से की लहर पाई जाती है और सूरत हाल अब मरकज के हाथों से निकल चुकी है। शुमाल मशरक़ी इलाका जल उठा है तो दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसी रियासतों में एहतजाज जारी है और दिल्ली की सूरत हाल तो इंतहाई खराब हो चुकी है। सामना ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा पर पुलिस के हमले को गैर इंसानी और गैर कानूनी करार दिया। पुलिस ने मुतनाज़ा कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर बंदूक तक तान दी थी। जब खुद अपने तलबा पर बंदूकें तानी जाएं तो समझ लेना चाहिए कि हालात किस कदर काबू से बाहर हो चुके थे। शिवसेना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फिर एक बार इन हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया।
शिवसेना ने सवाल किया कि गुज़िश्ता 5 साल तक बरसक सजा रहने के बावजूद बीजेपी ने विनायकराव सावरकर को भारत रत्न अवार्ड क्यों नहीं दिया। सामना ने मजीद लिखा कि शिवसेना को इस मुतनाज़िया कानून से ज्यादा महाराष्ट्र की फिक्र लाहक है। जस्टिस आर भानुमति के ज़रिए क़यादत सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने निर्भया के एक मुल्जिम की तरफ से दाखिल करदा दरखास्त नज़रसानी को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस दरखास्त की समाअत करने के लिए कोई खास वजह मालूम नहीं होती। बांग्लादेश में रहने वाले 200 से ज़ायद रोहिंग्या मुसलमान रिफ्यूजी कैंपों से कश्तियों के जरिए म्यांमार को फरार हो गए, लेकिन म्यांमार के बहरी हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेशी हुकाम का कहना है कि मुल्क के साहिल से हर हफ्ता 1 या 2 कश्तियों को रोका जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी हंगामों के बाद गुवाहाटी में फिजाई और ट्रेन सर्विस बहाल हो गई है, जबकि डिब्रूगढ़ में 14 घंटों के कर्फ्यू में ढील दी गई है। शहरियत कानून के खिलाफ गुवाहाटी और शुमाल मशरक़ी रियासतों के कई इलाकों में 11 दिसंबर से कर्फ्यू नाफिज था। आज सुबह 6 बजे से 14 घंटों की नरमी दी गई है। बैंक और दूसरे कारोबारी इदारे खुल गए हैं और ट्रेनों और गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल हो गई है। अलबत्ता इंटरनेट मोबाइल सर्विस आज भी बंद रही। यहाँ बताना जरूरी होगा कि इन हंगामों के दौरान आसाम में 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि अवामी इमलाक का भारी नुकसान हुआ है। चीन में कोयले की कान में धमाके के नतीजे में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 मजदूर हनुस फंसे हुए हैं। यह हादसा ज़ोबे गज़ीहो में कल रात देर गए पेश आया। हुकाम ने 7 मजदूरों को बचा लिया है। ओलंपिक मुकाबलों में क्वालिफाई होने के लिए लंदन ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाली मेरी कॉम का निज़ामाबाद की निकत ज़रीन से मुकाबला नहीं हो सका, क्योंकि मेरी कॉम मुकाबले के लिए आई ही नहीं। ज़राए के मुताबिक मेरी कॉम कमर की शदीद तकलीफ में मुब्तला है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।